हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। टुडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ नूतन पब्लिकेशन बुक. Okay, yesterday we are discussing some numerical. Today we have to discuss numerical number 13. Newton numerical number 13, page number 198, old book. Question is given here: if vector A equal 3i cap plus 2j cap and vector B equal I cap minus 2j cap plus 3k cap, then find the magnitude of vector A plus B and A minus B. For finding this, first of all, number 13, vector A is given 3i plus 2j, 3i cap plus 2j cap, and vector B equal I cap 2 minus 2 cap, I cap minus 2j cap plus 3k cap. Okay, what we have to find? We have to find vector A plus B and vector A minus B. We have to find vector A plus vector B equal what? And vector A minus vector B equal what? So add vector A and B. Vector A plus vector B equal 3i cap plus 2j cap plus I cap minus 2j cap plus 3k cap. Now add it. Vector A plus vector B equal 3 1 4 4i cap and here is a plus 2j cap and minus 2j cap. It will become 0. Remaining here 3k cap. बुक में क्वेश्चन दिया है, अगर हम यहीं पे कहें कि फाइंड द मॉड, अगर आपको मॉड निकालने के लिए कह दिया जाए तो फाइंड द मॉड वेक्टर A प्लस मॉड वेक्टर B, तो मॉड निकालने के लिए आप क्या करते हैं? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 प्लस 3 into 3 9, that is 25 and answer is 5. अगर मॉड दिया होता निकालने के लिए तो आप मॉड भी निकाल सकते ना. वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A 3i cap plus 2j cap minus I cap minus 2j cap plus 3k cap. Open the bracket. Then vector A minus vector B equal 3i cap plus 2j cap minus I cap minus minus plus 2j cap plus minus minus 3k cap. Now if you have to solve 3 minus 1 2 I cap plus 4j cap and minus 3k cap. If in the question asked find the mod of vector A minus vector B, अगर पूछा होता यही आपका आंसर है. अकॉर्डिंग टू बुक आपको बस इतना ही फाइंड आउट करना है. लेकिन अगर आपसे कहता बुक में कि फाइंड द मॉड ऑफ वेक्टर A minus वेक्टर B, तो आप क्या करते हैं? बहुत ही इजीली से सॉल्व कर लेते. 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर
इसलिए आंसर आया आपका 4 16 प्लस 9 25 एंड 4 into 29, तब इतना आंसर आया। ओके बच्चों, next question, question number 14. The sum and difference of two vectors, vector A and vector B are, vector A plus vector B is given 2i cap plus 6j cap plus k cap. Question number 14. Vector A is given 2 6 1 2i cap plus 6j cap plus k cap, and vector B is also given 4 2 minus 4i cap vector A plus B and A minus B, vector A plus B, vector A plus vector B, that is, and it is vector A minus vector B as well. 4i cap 2j cap plus 2j cap minus 11 k cap. क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कर रहा है, यहाँ पे वेक्टर A प्लस वेक्टर B की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर A माइनस B का जो वैल्यू दिया है दैट इज 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11 k कैप. You have to find the magnitude of each vector and their scalar product. Scalar product means dot product, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, और फाइंड आउट करना है. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, mod vector A equal what, mod vector B equal what, and vector A dot vector B equal what. इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वेक्टर A plus B. The value of vector A plus vector B is given 2i cap plus 6j cap plus k cap. Vector A minus vector B's value is given also 4i cap plus 2j cap minus 11 k cap. Now add this equations, add it. अगर आप एडिशन करोगे तो देखो क्या आता है. The result, this is cancel out. 2a vector, अब इसे ऐड करेंगे 4 and 2 6i cap and 6 and 2 8j cap and 11 minus 1, that is a minus 10 k cap. Now easily we can find the mod of vector A after solving it. 2 vector A equal, you have to take common 2, 3i cap plus 8j cap, sorry 2 4s are 8 and 2 5s are 10 k cap.
वेक्टर A इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ना फाइंड मॉड वेक्टर A। मॉड वेक्टर A इक्वल अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 5। देन मॉड वेक्टर A इक्वल 9 प्लस 16 प्लस 25। इसको ऐड कर लीजिए। अंडर रूट 50 अंडर रूट 50 यह है आपका मॉड वेक्टर ए। नाउ फाइंड to find the mod vector b we have to subtract this also. Equation is given vector a minus vector b equal 4i cap plus 2j cap minus 11k cap and vector a plus vector b equal 2i cap plus 6j cap plus k cap। अभी फर्स्ट टाइम में आपने ऐड किया था ना, अब आप इसे क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखना वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी। सब्सट्रैक्ट देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये हो गया 2b वेक्टर एंड 4 में से हो गया 2i कैप एंड प्लस माइनस माइनस ये आपका आया कितना 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4j कैप एंड प्लस माइनस माइनस 12k कैप। अब मॉड निकालना है, मॉड इजीली आप निकाल सकते हैं। मॉड निकालने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कॉमन ले लिया है I cap to do the 4 2 6 12 I cap plus 2j cap minus 6k cap। मॉड वेक्टर को निकालना है तो वेरी सिंपल फॉर यू। ये देखिए in the root 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 36 1 plus 4 plus 36 and 4 40 plus 41 अंडर रूट 41 ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल सकते हैं। The value of vector A is 3i cap plus 4j cap 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and value of vector B that is I cap plus 2j cap minus 6k cap। Now you know very well मैंने आपको कहा था बहुत ध्यान
से एकदम मतलब इस रूल को याद रखिएगा कि सेम सेम वन डिफरेंट डिफरेंट जीरो इन द डॉट प्रोडक्ट। तो सेम सेम वन इसका मतलब आई कैप वन होगा, बट अगर ये आई कैप डॉट जे कैप हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 3 into 1 plus 4 into 2 minus 6 into 5 into 6। अब इसी को सॉल्व करके आप इजीली लिख लीजिए, हो जाएगा 3 plus 4 into 8 and 6 5 the 30। आंसर कितना आया है आपकी बुक में, -25। बुक में आंसर -25, तो मेरा -25 के नहीं आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कुछ मिस्टेक हुआ है। एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज गिवन 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज गिवन 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। दिस टर्म कैंसिल आउट, 2b वेक्टर इक्वल -2i कैप एंड प्लस 4j कैप माइनस 11k कैप, 2b वेक्टर इक्वल 2 कॉमन i कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस दैट इज 12, 2 6 12 k कैप। वेक्टर b इक्वल माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मॉड वेक्टर b वेक्टर इज इन रूट स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -6। that is 6 is 36, 36 and 4 40 and 1 41 in root 41। now vector a और vector b I कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप सॉलिड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल 3 to 1 माइनस 3i कैप and plus 4 to the 8 and minus 6 5 the 30 30 is 8 कैप
minus 3 minus 22, that is minus 25. Now we will discuss the next question. क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के मिड में आपको एंगल कैलकुलेट करना है। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आई कैप 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर बी इसमें 6i कैप माइनस 3j कैप, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। आपको निकालना है इनके मिड में एंगल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम निकाल लें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, और उसके बाद इसका मॉड निकालेंगे। अगर मॉड वेक्टर के आप निकालोगे देन अंडर रूट 2i कैप 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 टू द 4 4 प्लस 4 8 1 9 रूट 9, दैट इज 3 एंड मॉड वेक्टर बी, mod vector b is in a root square of 6 plus square of minus 3 plus square of 1, that is 6 into 36, 36 में 1 ऐड किया, 36 में 9 ऐड किए तो 36 एंड 4 40 45 1 आपका हो गया 46 निकाला है। कितना है? इसमें कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। इनको दे देंगे 2j इक्वल then it is square of 2, it is square of 4 and it will become 49, it means 7 7 या 49। वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकाल लीजिए। वेक्टर a डॉट वेक्टर b चलिए अभी आगे निकाल लीजिएगा। ab cos थीटा किलोमीटर एंड cos थीटा इक्वल वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ab एंड थीटा इक्वल cos इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ab, पुट द वैल्यूज थीटा इक्वल cos इनवर्स vector a value is that is 2i cap plus 2j cap minus k cap and 6i cap minus 3j cap plus 2k cap upon 3 into 7। अब इसको हम सॉल्व कर लो। थीटा इक्वल cos इनवर्स 6 into
प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका साइन मिलेगा माइनस, then 3 to the 6 and plus 2 upon 3 into 7, that is 12 plus 6 is 6 and 2 8. It means theta equal cos inverse 8 upon 21 and it is a value of 79 degrees. Note it now. बाकी के क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 21 में जो क्वेश्चन है दिया है, प्रूव दैट वेक्टर ए इक्वल 4i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको पता है जब वेक्टर अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, दैट इज 0। तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अ रिवर फ्लो एट 3 मीटर पर सेकेंड, ए रिवर फ्लो 3 मीटर पर सेकेंड एंड इज 300 मीटर वाइड। जो रिवर का विड है वो कितना है, अगर आप इसको रिवर ले लें, ये वैल्यू दिया है 300 मीटर एंड और क्या कह रहा है, रिवर फ्लो 3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड की कौन सी रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, A man swim across the river with velocity 2 मीटर पर सेकेंड। एक मैन है जो 2 मीटर पर सेकेंड से इसमें स्विम कर रहा है, ओके। फिर क्या कह रहा है, डायरेक्टेड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो। वो रिवर के फ्लो की क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन अराइजेस हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मैन टू क्रॉस द रिवर। टाइम पूछ रहा है कि जो मैन है वो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। ठीक, और पूछ रहा है इन व्हाट डायरेक्शन डज ही एक्चुअली मूव रिलेटिव टू द शोर, हाउ फार डज द स्ट्रीम, डज ही रीच द अपोजिट बैंक। तो निकाल लिया जाए, नॉट अ डिफिकल्ट, नॉट अ इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और कुछ भी इजी नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आया तो बहुत डिफिकल्ट है। आपको सबसे पहले टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर निकालना है। तो आपको बचपन से एक फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टेकन इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले में रखिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। दैट इज 300 अपॉन 2, टाइम टेकन इज 150 सेकेंड। ठीक है, आंसर इज गिवन इन 2.5 मिनट। अरे तो इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, ठीक है, सेकंड को मिनट में चेंज कर लीजिए, आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है, सेकंड कह रहा है इन व्हाट डायरेक्शन डज ही एक्चुअली मूव रिलेटिव टू द शोर। तो एक काम कीजिए, tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए आपका क्या है, ये अच्छी जाएगा, तो 3/2 थीटा इक्वल tan इनवर्स 3/2।
पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको पता है 1.5, और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 56.3 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप एक काम कर सकते हैं, 90 में से 56.3 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, एंगल ऑफ 4। तो ये हुआ 7 एंड 9 में से 6 या 3, इतना आ जाएगा आपका 33.7। और क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अपोजिट वैल्यू, तो डिस्टेंस निकालने के लिए x इक्वल स्पीड इनटू टाइम, आराम से निकल जाएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी उसी टाइप का है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 2 bullets are fixed with horizontal velocities 50 meter per second and 100 meter per second from 2 guns at a height of 19.6। ठीक है, पूछ रहा है will both the bullet strike the ground, तो obviously yes, both the bullet strike the ground। If yes, then after how much time and which bullet will strike first। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला आपको ये याद है कि T इक्वल टू H/G इन रूट। इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, सब कुछ गिवन है, डाटा रख के कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। दैट इज H इज गिवन 19.6। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ निकालने के लिए कह रहा है, What would be the path of the bullet? अरे भाई आपको पता है since the gravitational acceleration is not change, that's why its path is parabolic। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है a bullet is thrown with a velocity of 15 meter per second at an angle of 30 degree। वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकेंड। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, जो गिवन है उसको लिख डालिए। और कह रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फार्मूला आपको पता है, टेन इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 15 साइन 30 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू देखिए 9.8 लिया है कि 10 लिया है बुक में। वेरी गुड, 26 में 10 लिया। ओके, यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 2 × 15 × 1/2 अपॉन 10, 2 to cancel out, that is 1.5 second। Anything more is to find out? मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला बताइए बराबर u² sin² थीटा अपॉन 2g, दैट इज
जी कितना, अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो 15 इंटू 15 एंड साइन 20/2 इट मीन आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 10। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राउंड ऑफ आंसर 2.8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री विद द स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया है 49 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी इजी, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, तो 49 मिनट। तो 2 इंटू 49 साइन 30 अपॉन जी वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर वैल्यू 10 नहीं दिया है तब आपको वैल्यू 9.8 ही लेना चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू 9.8 लेके ही सॉल्व करोगे। तो 2 इंटू 49 इंटू 1/2 अपॉन 9.8 कट गया, एंड इसको उठा देगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देगा, इसको सॉल्व कर लेगा तो आंसर आपका आ जाएगा। और क्या निकालना है सर, हॉरिजेंटल रेंज। रेंज निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, आपको रेंज निकालने का फॉर्मूला ये पता है, आप इसमें वैल्यूज रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। 49 इंटू 49 साइन 2 इंटू 30 अपॉन 9.8 दैट इज 49 इंटू 49 इंटू साइन 60, द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2 इंटू 9.8। आप इसको सॉल्व करोगे तो 212.176 राउंड ऑफ आंसर आएगा। और इसको आप अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके ले सकते हैं 212.2 मीटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कर रहा है, एन एरो इज थ्रोन इन द एयर इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड एंड रेंज इज 200 मीटर। डिटरमाइन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैक्सिमम हाइट एंड द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, एन एरो इज थ्रोन इन एयर इन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, that is given 5 to 2u sin theta upon g, and g की वैल्यू आप कुछ
भी ले सकते हैं। अगर बुक में दिया है कुछ तो जी की वैल्यू 9.8 लीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 2u इक्वल 2u sin थीटा इक्वल 5 g and u sin थीटा इक्वल 5 into 9.8 upon 2, दैट इज इसको आप सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके इसका आंसर लिखोगे तो राउंड ऑफ आ जाएगा आपका 24.5 मीटर पर सेकेंड। एक तो दिया गया, और क्या दिया हुआ है सर? रेंज दिया है 200 मीटर। तो रेंज निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इस फॉर्मूले को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, 2 into u sin थीटा into u cos थीटा upon g। Now range is given 200 to u sin थीटा। तो u sin थीटा की वैल्यू आपको पता है, द वैल्यू ऑफ u sin थीटा इज 24.5 into u cos थीटा upon 9.8। Now 2 into 24.5 u cos theta equal 200 into 9.8। u cos theta 200 into 9.8 upon 2 into 24.5, that is u cos theta। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आंसर आपका आ जाएगा राउंड ऑफ होके आ जाएगा। अब सर देखिए आपको क्या निकालना है, दो कंपोनेंट तो हमने निकाल लिया। मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन बाबू इसी टाइप से करने हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और निकालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल भी निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, tan थीटा इक्वल u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। तो u sin थीटा की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 24.5 अपॉन 40 एंड थीटा इक्वल tan इनवर्स। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 245 अपॉन 400। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो 5/40 थीटा इक्वल tan इनवर्स 49 अपॉन 80। यही आंसर आपको मिलेगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी न्यूमेरिकल में डाउट होता है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।
या इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं।